Good morning, students. Dear students, today we are going to start a new lesson that is things around us. Okay, now we know we are always surrounded by many things. Okay, and all things around us they can be grouped into living things and non-living things. We all know what are living things and what are non-living things. Now there is an immense diversity of living things on the earth, and living things, they are natural, and non-living things, they are either natural or can be man-made. In this chapter, we are going to study about the characteristics of living things, their habitat, and biotic and abiotic components. Okay, let's get started. Firstly, we will study about characteristics of living organism. Now, the characteristics of living things. We all know human beings, plants, animals, microorganisms, insects, they are all living things. Okay. Now, what are the basic characters, or you can say what are the common characteristic features of the living things? We will study. Living things, they have a definite structural organization. First thing, structural organization means उनका जो build-up होता है, it's very definite. Okay, because all the living things, they are made up of millions of small unit that is known as cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल माइन्यूट जो सेल्स से मिलके बनते हैं. एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ थिंग्स दैट इज़ एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड सेल. अब नाउ द सेल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा. नाउ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़. और जो भी सेल्स हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं. ओके, और जब ये जो टिश्यूज़ हैं ये ग्रुप होते हैं एंड दे फॉर्म ऑर्गन्स. ओके, और ये जो ऑर्गन्स दे ग्रुप एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड दीज organ system they group and form a complete organism. Okay, we will understand this whole concept by a simple diagram. Now here you can see the cells. Okay, cells are the basic building blocks. Okay, जैसे भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, उससे मिलके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है. उसी अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है या लिविंग बींग्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, अब ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप होते हैं एंड दे फॉर्म अ टिश्यू. सेल्स के एग्जाम्पल हो गए रेड ब्लड सेल्स. ओके, अब टिश्यूज़ का एग्जाम्पल हो गया स्किन टिश्यूज़. अब ये जो स्किन टिश्यू, जैसे ये जो टिश्यूज़ हैं, ये खूब सारे टिश्यूज़ एक साथ ग्रुप होते हैं जिनके फंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं. दे फॉर्म ऑर्गन. अब अलग अलग ऑर्गन लाइक स्टमक, किडनी, हार्ट, ये सब किससे मिलके बने हैं? सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलके बने हैं. ओके, अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गन सिस्टम. लाइक अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं दे परफॉर्म सेम फंक्शन टू डाइजेस्ट द फूड. ओके, तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गए. देन ऑर्गन सिस्टम collectively form a complete organism or complete human being. So this is the structural organization of a human being. Now depending on the number of cells के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड द लिविंग थिंग्स दे आर क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. अब नेम से ही पता चल रहा है यूनी मीन्स वन. लिविंग थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और वन सेल, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम. एंड they perform all the activities, all their life processes by a single cell. And living things which are made up of several cells, they are known as multicellular, like human beings, dog, houseflies, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल अपना अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. ओके,
Now we know living things, they also need food. All the living things, they need food for their survival. Okay, and food provides energy, and energy for performing various activities, for growth. ओके, अब कई तो होते हैं लाइक प्लांट्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड इन देयर बॉडी बाय फोटोसिंथेसिस, तो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, और जिन इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ये वी हैव स्टडीड दिस. एंड एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, whether they are plants or whether they are other animals, they are known as consumers or they are heterotrophs. Okay, and non-living things, dead animals or dead organisms, they do not need any food. Next important feature is living things grow. All living things, they grow. Okay, living beings from a single cell, they grow, their cells grow, they enlarge in size, they divide to form a new cell. Okay, and the size of the organism भी increase करता है, number of cells increase करते हैं, और ग्रोथ अलग अलग स्टेजेस पे होती है. अब अगर हम सीड और प्लांट का एग्जांपल देखें, तो सीड इट ग्रोज इनटू अ सैपलिंग एंड देन इनटू अ लार्ज ट्री. सेम वे एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे ग्रो इनटू एन इन्फेंट, then they grow into an adult. And growth in living things, they are irreversible, वो next characteristic of living organism is they respire. Okay, living organisms, they breathe. The process by which living things take in oxygen and use that oxygen for releasing energy. जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, टेक इन करते हैं, दैट ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी टू ब्रेक द फूड को ब्रेक करने के काम आती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है. दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग सिर्फ एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं और we breathe out carbon dioxide. Okay, so the process is known as breathing. But जो ये ऑक्सीजन है, that oxygen is used by our body to break the food and release energy. food को break करे और energy को release करे. This is known as respiration. Okay, और respiration एक बहुत important feature है. Okay, living things move. Now all the living things, they move except some plants. Animals, they move from one place to another. And why do animals move? Animals move करते हैं फूड की, शेल्टर की सर्च में, या अपने आप को अपने एनिमीज से सेव करने के लिए. प्लांट्स जो होते हैं, दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल बाय देयर रूट्स. तो ये जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वो मूव करते हैं, लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स, दे शो मूवमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल जो रूट्स होती हैं प्लांट की, दे ग्रो टुवर्ड्स द कैविटी, नीचे की तरफ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं. दैट इज़ नोन एज जियोट्रोपिज्म. और जो स्टेम है, वो ऊपर लाइट की तरफ ग्रो करती है, अपवर्ड ग्रो करती है, उसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं. ओके, फोटो मीन्स लाइट, तो स्टेम लाइट की तरफ मूव कर रही है. लिविंग थिंग्स, दे रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई. अब रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई मीन्स, अच्छा सपोज़ अगर आपको एक निडल प्रिक करती है, या आपको एकदम से पेंसिल की जो लेड होती है वो शार्प, या कोई भी शार्प चीज़ या कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट पे आपका हैंड चला जाता है, व्हाट यू डू, यू जस्ट रिमूव योर हैंड. एकदम से आप अपना हैंड रिमूव करते हो. दिस इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ये करेक्टरिस्टिक भी मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स शो करते हैं. ठीक है, तो रिएक्टिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स. और जो भी चेंज होते हैं अराउंड अस मेक अस रिस्पॉन्ड. दिस इज़ नोन एज स्टिमुलस. ओके, नाउ थिंग्स like now some plants like touch me not plant, they immediately closes its leaf जब उसको टच करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. एंड एनिमल्स हीट, कोल्ड, टच, स्मेल, साउंड, इन सब की तरफ अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स जो हैं,
ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं देयर यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, मीन्स टू प्रोड्यूसिंग बेबीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. एंड मोस्ट प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, एंड एनिमल्स दे आइदर रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ, या तो बर्थ दे के बेबी को, या बाय लेइंग एग्स, एंड दैट एग्स दे हैच इनटू a baby. And animals that lay eggs are known as oviparous animals. And animals that give birth, उनको viviparous कहते हैं. Okay. Next is living things excrete. What is excretion? The process by which the waste from the body is removed. To get rid of the waste is known as excretion. और ये process भी living beings ही show करते हैं. जो भी waste products बनते हैं हमारी body में, they harm us, okay, और they need to be removed from our body. ओके, जैसे कि कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्वेट है, यूरिन है, दीज आर ऑल waste products. Okay, lungs, skin, kidney, they remove this type of waste. Plants, they also remove their waste products. For example, they remove by some secretions like gum, rubber, resins. These are also the waste products, and they are removed by the plants, but they are used by human beings for the various purposes. And last characteristic is living things, they have a lifespan. Okay, all living things, they take birth लेते हैं, grow करते हैं into adult, then they become old, and then they finally die. The time of the organism from its birth टू डेथ, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक के टाइम को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. एंड इस एंटायर लाइफ स्पैन को हम लाइफ साइकिल कहते हैं ऑर्गेनिज्म